इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक देश की सर्वोच्च अदालत ने विशेष लोक अदालत का आयोजन किया था। ऐसा हमारे देश में पहली बार हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाई गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि हम ऐसा करके भारतीय न्यायिक तंत्र में लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहते हैं। न्यायिक तंत्र के प्रति आम जनमानस के विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला। सुप्रीम कोर्ट का कामकाज निपटाने के बाद इन तीनों दिन सीनियर वकील और न्यायाधीश की बेंच ने दोपहर बाद से कोर्ट के अंदर ही विशेष लोक अदालत का आयोजन किया और मामलों की सुनवाई की, जिसके साथ उनका समाधान भी खोज निकाला। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की इस अनूठी पहल से आम इंसान तक न्याय सुलभ हो सका है। न्यायिक तंत्र के प्रति आम लोगों में नया विश्वास जगा। 3 अगस्त को इसी विशेष लोक अदालत का समापन समारोह मनाया, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति नजर आई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात भी हुई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ऐसी तैरती नजर आई जिसमें दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हुआ, लेकिन समापन समारोह में सीजेआई का संबोधन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई ने ऐसा क्या कह दिया जो पलक झपकते ही राष्ट्रीय सुर्खियों में शामिल हो गया, हम आपको बताते हैं। दरअसल सीजेआई ने सभागार में बैठे हुए सभी लोगों से कहा कि मौजूदा वक्त में हमारे देश के लोग लोक अदालतों की कार्यवाही से तंग आ चुके हैं। उनको अब अदालतों की कार्यवाहियों में उम्मीद की किरण बड़ी धुंधली नजर आने लगी है। इसी वजह से वो आपसी समझौते में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। यकीनन सीजेआई का यह बयान अपने आप में पूरी एक बहस समेटे हुए है। क्या हमारे देश में न्यायिक जिम्मेदारों को एक बार फिर से न्याय की समीक्षा करने की जरूरत आन पड़ी है? फिलहाल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष लोक अदालत में लोक अदालतों के महत्व पर भी बात की। सुनिए। The DLSAs did so much of rigorous work, hand-holding, because these settlements in the Supreme Court would not have been possible unless they were settlements with our citizens in the smallest villages and talukas. They bring small matters to the Supreme Court. Somebody's compassionate appointment, somebody's pension, somebody's ACP, somebody's, subsistence allowance during suspension, motor accident claims. In fact, a very senior secretary from the Government of India and a very distinguished former civil servant who were engaging with me last week said, sir, we never knew that the Supreme Court deals with such small cases because we are so used to looking at the Supreme Court as that court which is dealing with all these big ticket cases which get reported on the first page of the newspapers every morning. But what is lost to, I think, a lot of people is the kind of small work which we do in the Supreme Court. So many people ask me, why does the Supreme Court have to deal with such small cases? What is the purpose? Is this the purpose of the Supreme Court? And I always respond by saying that when the Constitution was framed by stalwarts like Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, they did it with a mission. They introduced Article 136 into the Constitution for the purpose that this was a court which was being set up in an essentially poor society, where there was an absence of access to justice. We operated in colonial structures of patriarchy, oppression, caste, discrimination. And the idea behind creating this institution which would reach out to people was to ensure that this would not be one of those courts like the American Supreme Court which deals with 180 constitutional cases, but a court which would truly be a court reaching out to the lives of common citizens, and therefore, Nyay Sabke Dwar. That is the... And the purpose of our Lok Adalat has been truly to take justice to the homes of people, to ensure that we remind people that we are a constant presence in their lives. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया था। सीजे साहब, हमारे इस देश में अगर मैं कहूं, पहली लोक अदालत भगवान कृष्ण ने लगाई थी। मैं थोड़ा सा आपको उस रूप में ले जा रहा हूं। बड़ा विवाद हो गया था कौरवों का और पांडवों का। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, अब उस समय वो चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का वैसे विषय तो था नहीं, सोचा कि कुछ मैं मध्यस्थता करूं जिससे ये इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो लड़ाई का। लेकिन वो गए और जाकर के जब उन्होंने प्रस्ताव रखा
तो दुर्योधन नहीं माना। अब नहीं माना तब जाकर के परेशानी हुई। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मध्यस्थता करना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन पैदा हो गई है उसको सुलझाना हमारी संस्कृति में रहा है। बहरहाल लोक अदालतें न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देने और वैकल्पिक विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विशेष लोक अदालत के लिए चयनित मामलों की संख्या 14,045 थी। लोक अदालत पीठों के समक्ष 4,883 मामले सूचीबद्ध किए गए और 920 मामलों का निपटारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।